So now, guys, we will start from this moderates and extremists in Congress. दो फैक्शन थे, मेरे टू फैक्शन थे, दो पार्ट थे कांग्रेस के, कि जो एक मॉडरेट्स थे एक एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, जो मॉडरेट्स वाले आए थे जो फाउंडेशन के टाइम में थे कांग्रेस के, और एक्सट्रीमिस्ट थे जो सडन मतलब तुरंत मतलब चाहते थे कि आज़ादी मिल जाए, और इनको नरम दल और गरम दल भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया थ्योरी पार्ट, सो यू कैन रीड इट बाय स्टॉपिंग द वीडियो इफ यू वांट। ओके, this is the given, but I don't recommend this. I recommend only from the question answer revise. Yeah, this is the theory part given, and this is the first questions. We will start from the first question. So what is saying the first question? What is saying? क्या बोल रहा first question? Which are the following international events influenced the course of the national movement in India before the advent of the महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के पहले क्या क्या हुआ था भाई बताइए। तो देखिए, इटालियन अबेसिनियन वार हुआ था 1898 में। देन बॉक्सर मूवमेंट इन चाइना में हुआ था। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन आयरलैंड में भी हुआ था। विक्ट्री ऑफ जापान इन द रूसो जापानी वार 1904 वाला हुआ था। तो ये चारों सही है। So the Italian Abyssinian War जो हुआ था, in which Italian colonial power was defeated. The Boxer movement against the imperialist in China during 1899 to 1901 AD, and Japan's victory over Russia influenced the direction of the national movement in India before the advent of the Mahatma Gandhi. But among these Japan's victory over Russia, देखिए जो जापान तो छोटी सी कंट्री थी, इन्होंने जो है रसिया को हरा दिया था 1905 में, इन्होंने रसिया को हरा दिया था। Had the most impact. Japan had proved itself militarily superior to a powerful European country by defeating Tsarist Russia in the year 1905. This dispelled the false illusion that the people of the white race were invincible. मतलब जापान ने हरा दिया था ना रसिया को, तो इसने सिद्ध कर दिया कि वाइट्स जो होते थे यूरोपियन को हराया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उन्हें कभी नहीं हराया जा सकता है, मतलब हराया जा सकता है। ठीक है, read the following statements regarding the liberal phase of the Indian national movement 1885 से 1985 के बीच में, 1885 से 1905 के बीच में जो हुआ था। उसको बताना है। मतलब जो पीरियड है ना 1885 से 1905, इसको लिबरल पीरियड बोलते हैं, क्योंकि 1907 में तो डिवाइड हो गया था ना। तो इट सपोर्टेड द रिच डेमोक्रेटिक एंड साइंटिफिक कल्चर ऑफ मॉडर्न यूरोप, सही बात है। स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट, ये एक्सट्रीमली जो है किए थे जो है, क्योंकि इसमें मॉडरेट्स थे, उसमें भी जैसे ये थे ना दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने ये क्रिटिसाइज किया था कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किया जा रहा है, इंडिया का धन को लूटा जा रहा है। तो दोनों सही हैं। ठीक, सी विल बी द करेक्ट आंसर। During the moderate phase 1885 से 1905 के बीच of the Indian national movement, there was support of the rich democratic and scientific culture of the modern Europe. The moderate leaders advocated for constitutional reform, political participation, and the expansion of modern education. They supported English education as they believed it would help develop a modern outlook and social progress in India. However, the growing mass viewed British colonial policies with increasing resentment. Notably, Dada Bhai Nauroji strongly criticized economic aspects of the British colonialism. His book Poverty and Unbritish Rule in India highlighted issues related to the economic drain, heavy taxation, and the decline of the Indian industry. The moderates attempted to address such concerns through constitutional means rather than डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। जो मॉडरेट्स थे ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अपना रहे थे rather than वायलेंस, वो वायलेंस को नहीं अपना रहे थे। ठीक, इसका मतलब इन्होंने गांधीयन को व्यू को फॉलो किया था शुरू में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, द प्रोटेस्ट मेथड ऑफ द मॉडरेट्स लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज, उनका जो मॉडरेट्स थे उनका मेथड क्या था, बोलते नहीं थे ट्रिपल पी, प्रेयर हुआ, प्रोटेस्ट हुआ एंड पिटिशन हुआ। तो ट्रिपल पी जो ये लोग चला रहे थे ना, ट्रिपल पी, प्रोटेस्ट, पिटिशन, ठीक है, ये चला रहे थे। उनसे प्रेयर करते थे पहले, वो लोग जानते क्या करते थे, पहले प्रेयर करते थे, उसके बाद वो पिटिशन डालते थे, रिक्वेस्ट करते थे, उसके बाद प्रोटेस्ट करते थे नॉन वायलेंस वे में। तो ये क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अपना रहे थे कि जो कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे वो काम कर रहे थे। The methods employed by two groups, moderates and extremists of the Congress, were different in their tempo. उनका थोड़ा विचार अलग थे moderates and extremists का, and approach. Congress is split into two different groups at Surat session of the Congress in 1970, while the moderates had infinite faith in the efficacy of the constitutional agitation in appealing to the British sense of the justice and fair play, in holding an annual conference, making speeches, passing elaborate resolutions and sending deputations to England. The extremists had no faith in the benevolence of the British public or parliament, nor were they convinced of the efficacy of the merely holding conferences. Extremists had faith in the concept of passive resistance. वो रेसिस्टेंस अपना रहे थे पैसिव वाला, ठीक है, कि जैसे ब्रिटिश सामान नहीं खरीदेंगे उसको जला देंगे, ठीक है, तो ये पैसिव हुआ। एक्टिव में तो वायलेंस अपना लिए थे पूरा, ठीक। Which one of the following movements had contributed to a split in the Indian National Congress, resulting in the emergence of the moderates and extremists? कौन सा मूवमेंट था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्प्लिट कर दिया ये मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स में? तो ये स्वदेशी मूवमेंट में ना, जो 1997 में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, उसी में ये अलग हो गए थे, ठीक है। सूरत स्प्लिट जो हुआ था, इसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं। 1997 refers to the split in the Congress party into two groups, moderates and extremists. Moderates believed in the policy of settlement of minor issues with government by deliberation, strikes and boycotts to force their demands. जो मॉडरेट्स होते थे ना, क्या करते थे, स्ट्राइक्स करते थे, बाइकआउट करते थे, ठीक है। द मॉडरेट्स अपोज द रेजोल्यूशन ऑन स्वराज सेल्फ गवर्नेंस। जो मॉडरेट्स थे ना, इन्होंने इसका अपोज किया स्वराज का, सेल्फ गवर्नेंस का, जो एक्सट्रीमिस्ट ला रहे थे, ठीक है। स्वदेशी नेशनल एजुकेशन का भी अपोज किया, एंड बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, बट एक्सट्रीमिस्ट वर नॉट इन फेवर ऑफ दिस, ठीक है। स्वदेशी नेशनल एजुकेशन को एंड बाइकआउटेड ऑफ फॉरेन गुड्स, उन्होंने इसका विरोध किया था, बट एक्सट्रीमिस्ट वर नॉट फेवर ऑफ दिस, हेंस द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट फाइनली रीच्ड टू स्प्लिट इन द कांग्रेस एट द सूरत सेशन 1987 में, वो अलग हो गए थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर्स हेल्ड फ्रॉम, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो अर्बन एरिया से मोस्टली बिलोंग करते थे, जितने मॉडरेट्स थे। ड्यूरिंग द इरा ऑफ द लिबरल पॉलिटिक्स, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, वमोचंद बनर्जी एंड सुरेंद्र बनर्जी were the moderate leaders who hailed from urban areas. The domination of the prosperous and middle class scholars like barristers, doctors, engineers, journalists, and literary people was found during this period. The title and high designation charmed them. These representatives of the Congress hailed from metropolitan cities and had no connection with ये जो मॉडरेट थे ना, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज से बिलोंग करते थे, रिच क्लास थे, और इनका कॉमन पीपल से कभी बिलीव ही नहीं करते थे। ये सोचते थे कि वो कमज़ोर हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, तो अपने उन्होंने कभी पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया मिडिल क्लास को। तो जो एक्सट्रीमिस्ट आए ना, तो उन्होंने मिडिल क्लास को भी अपने साथ लिया, तो इससे चीज़ें तेज़ी से बढ़ने लगी, ठीक है। Who are the following continuously from 1994 onwards emphasized on the grant of the self rule to India? किसने सेल्फ रूल को प्रमोट किया? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने क्या दिया था, इन्होंने लिखा था
पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था। In 1904, first Dadabhai Nauroji demanded Swaraj self-rule or self-government in International Social Congress for India and continuously emphasized on the grant of the self-rule in India. In his presidential address in 1906, he demanded Swaraj self-rule at the INC session. Which one of the following was not an extremist? कौन इसमें extremist नहीं थे? तो बाल गंगाधर extremist थे एंड गोखले जो है मॉडरेट थे, उधम सिंह एक्सट्रीमिस्ट थे, मदन लाल एक्सट्रीमिस्ट थे, ये मॉडरेट थे। कौन? जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो है मॉडरेट थे, ठीक है। Gopal Krishna Gokhale was a prominent social reformer of India who founded an organization to work for the relief of underprivileged. He led the moderate nationalists in the early years of the Indian independence movement. As an influential and respected member of the Indian National Congress, the leading nationalist organization in the pre-independence India, Gokhale advocated moderate and constitutional method of agitation and gradual reform. ये moderates को support करते थे गोखले साहब, ठीक है। Who among the following was not an outstanding leader of the extreme nationalism? कौन जो है इसमें outstanding leader नहीं था आप एक्सट्रीम नेशनलिज्म? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले तो मॉडरेट थे ना, ये कहाँ से याद है भाई आउटस्टैंडिंग एक्सट्रीम नेशनलिज्म, ठीक है। ये लाल बाल देखिए, लाल यहाँ से आए थे लोग, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। लाल यहाँ से आए थे, बाल यहाँ से आए थे और बाल यहाँ से आए थे, एक लाल बाल पालक काला था, तीनों लोग। Gopal Krishna Gokhale was one of the social and political leaders during the Indian independence movement against the British rule in India. He was a senior leader of the INC, founder of the Servants of the Indian Society. ये देखिए फाउंडर ऑफ द सर्वेंट सोसाइटी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, इसके फाउंडर थे। He was not a leader of the extreme nationalism, उसके लीडर नहीं थे। Who among the following was not an extremist nationalist leader? कौन इसमें एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो है मॉडरेट थे, एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा। Who accused Indian National Congress of the practicing politics of prayer, petition of prayer? तो इनमें से किन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है मतलब मॉडरेट्स जो है क्या कर रहे हैं, ट्रिपल पी कर रहे हैं, पहले प्रेयर करते हैं फिर पिटिशन करते हैं फिर प्रोटेस्ट करते हैं। ये बाल गंगाधर तिलक ने उन लोगों को क्रिटिसाइज किया था कि ऐसे थोड़ी मिलेगा आज़ादी भाई ट्रिपल पी करने से, ठीक है। प्रेयर पिटिशन एंड प्रोटेस्ट करने से नहीं मिलेगा, आपको पूरी तरीके से बाइकआउट करना पड़ेगा। इनके जो फॉरेन क्लास इनको जला दीजिए, ठीक है, सेल्फ रूल डिमांड करिए, सेल्फ रूल की, पूर्ण स्वराज की। द फर्स्ट 2 decades और INC आर डिस्क्राइब इन हिस्ट्री एज अ मॉडरेट इरा। जैसे 1885 से 1905 2 decade हुआ ना, इसमें मॉडरेट इरा कहलाता है। Among some of the prominent moderate leaders are दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस जो है ये सब मॉडरेट थे। कौन कौन थे? दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, ऐसे पूछता कौन मॉडरेट है, याद रखिएगा। महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन फाउंडेशन ये सब किए थे ना, आनंद मोहन बोस और गोपाल सुरेंद्र बनर्जी, ये सब मॉडरेट्स थे। They had a sense of confidence in British justice and their generosity. Their aim was not aggressive nationalism for attaining independence. Leaders like Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal raised extremist ideology. तो ये सब एक्सट्रीमिस्ट थे। कौन कौन थे? तिलक, बाल लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, तीनों लाल बाल पाल इसमें एक्सट्रीमिस्ट थे। तिलक accused moderates of believing in constitutional method and favoring the policy of the protest, prayer and petition को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। Who accused Indian National Congress of practicing politics of prayer and petition and protest? बीजी तिलक ने इनको बोला था ऐसा। The Congress policy of the prayer and petition ultimately came to an end under the guidance of बाल गंगाधर तिलक के गाइडेंस में यह अंत हो गया था इसका।
प्रेयर पिटिशन का। कांग्रेस पॉलिसी ऑफ द प्रेयर एंड पिटिशन अल्टीमेटली केम टू एन एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ द बाल गंगाधर तिलक। ही was the strongest opponent of the British Empire. He strongly recommended a method of agitation. Many intellectual congressmen became his followers. Leaders like लाला लाजपत राय पंजाब के थे, एंड बिपिन चंद्र पाल कलकत्ता के थे। टर्न इनटू द, और जो बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे, ये मुंबई के थे। Turned into the staunch followers of him, they strongly opposed the moderate policy of the Congress. उन्होंने strongly oppose किया था किसका, moderate policy का oppose किया था। Who called the Indian National Congress as begging institute? मतलब begging institute बोल दिया था भाई, इतने किसने बोला था यार, ये थे बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल साहब ने बोल दिया बेगिंग। ऐसा कौन बोलता है, मतलब वो जो है ब्रिटिशर से मतलब बेग कर रहे थे, कौन मॉडरेट लोग ऐसा बोलते थे ये लोग, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो एक क्वेश्चन पूछता मेंस में कि बताइए अचीवमेंट क्या था मॉडरेट्स का, तो अचीवमेंट था भाई, मतलब शुरू में वो लड़ाई नहीं कर सकते ना ऐसे डायरेक्टली, क्योंकि वो उनके पास रिसोर्स नहीं थे यार मॉडरेट्स के पास जो बाद में ना सपोर्ट मिला फॉरेन का भी, और जनता मिडिल क्लास ने भी सपोर्ट किया बाद में। तो ऐसे शुरुआत कोई ना कोई करता ही है ना, ऐसा नहीं कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो ये सब इन लोग का गुस्सा था, तो बोल देते थे ऐसे बेगिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ये मैं बिपिन चंद्रपाल ने ऐसा बोला था। फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट बॉम्बे बेस्ड गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ऑन 28 to 30 दिसंबर 1885 में। एक्सट्रीमिस्ट कमेंटेड निगेटिवली, एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने निगेटिवली जो है कमेंट किया था, ठीक है। लाइक बिपिन चंद्र पाल जो है, बीसी पाल ने इसको बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि यह जो बेगिंग इंस्टीट्यूट है भाई, ठीक है, इसको बोल दिया कि यह बेगिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। Which statement is true regarding बिपिन चंद्रपाल? इनमें से कौन सा सही है बिपिन चंद्रपाल के बारे में, बताइए। He was a ब्रह्म समाज लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर। सही बात है, वो ब्रह्म समाज लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। देखिए BYQ कई बार पूछ चुका है इससे, और ये भी थे लाला लाजपत राय भी ब्रह्म समाज के मेंबर थे, ये भी थे। ये वीकली मैगजीन नेम्ड न्यू इंडिया वाज पब्लिश्ड, न्यू इंडिया वाज पब्लिश्ड। तो न्यू इंडिया यार वो लिखती थी ना एनी बेसेंट, लेकिन हो सकता है भी लिखती थी, ठीक है। जो मैगजीन था ये भी तो इसके पार्टनर थे, तो ये भी लिखते थे, क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक थे ना, ये भी होम रूल लीग के मूवमेंट है, और होम रूल लीग स्टार्ट किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, तो ये भी इन्वॉल्व थे, तो ये भी इनके पार्टनर थे, तो ये भी लिखते थे, ये पब्लिश करते थे। तो ये सही बात है, बोथ आर करेक्ट। Bipin Chandrapal was associated with Brahma Samaj and was a social reformer. In 1901, he published a weekly magazine New India. उन्हें पब्लिश किया था न्यू इंडिया का। इंडियन नेशनल मूवमेंट केम टू बी डोमिनेटेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट लीडर आफ्टर, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो डोमिनेट किया गया था बाय एक्सट्रीमिस्ट आफ्टर 1906 के द्वारा, एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा इसको डोमिनेट कर दिया गया था। After the year 1906, the effect of the extremists had increased in the Indian national movement. The Congress split at Surat in December 1907 में। जो देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट का जो इफेक्ट था इंक्रीज हो गया था 1906 में ही, लेकिन जो कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी कब 1907 में ही स्प्लिट हो गई थी। अराउंड द टाइम when revolutionary terrorism had gained मोमेंटम, उस समय रिवोल्यूशनरी जो है एक्टिव हो गए थे। द एक्सट्रीमिस्ट वर एग्रेसिव नेशनलिस्ट मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। द इम्पोर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर वर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल एंड अरबिंदो घोष। तिलक अनाउंस्ड दैट स्वराज इज माय बर्थ वे। जो अरबिंदो घोष थे ना, ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो तिलक ने क्या बोला था, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। देख लीजिए तिलक जी ने ऐसा बोल दिया था, जो कि बहुत फेमस था। स्वराज मतलब सेल्फ रूल, मतलब ब्रिटिश ही डिसाइड करेंगे हर एक चीज। पूर्ण स्वराज की बात नहीं है, सेल्फ रूल की मतलब, सेल्फ रूल मतलब जो ब्रिटिश होंगे ना, जैसे जो गवर्नर जनरल होगा वो तो रूल करेगा ही, लेकिन और सब जो पोस्ट हैं वो इंडियन को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये बोलते थे सारा जो पोस्ट है सब इंडियन को दीजिए, आप छोड़ जाइए।
मान लीजिए इंडिया भले ब्रिटिश के अंदर रहे लेकिन सब पोस्ट हैं सब इंडियन रूल करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस? कौन सा लीडर था जो एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस से बिलोंग करता था? ये थे अरविंदो घोष साहब, ठीक है, ये बिलोंग करते थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस से। अरविंदो घोष वाज एन एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द कांग्रेस, ही वाज वन ऑफ द फोर पिलर्स, लाल बाल घोष, ठीक है, ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। ही वाज अरेस्टेड इन 1908 बाय द ब्रिटिश पुलिस इन मनिकताला गार्डन में को अरेस्ट कर लिया गया था। He got the punishment of 1 year imprisonment, but he was released due to the lack of evidence. Finally, he became sage of साधु बन गया बाद में देखे with Nabawal. Secluded himself from the revolutionary activities and moved to Pondicherry. वो पौंडीचेरी चले गए और उन्होंने पॉलिटिक्स ही छोड़ दिया था। कौन छोड़ दिया था? अरविंदो घोष, ठीक है, पॉलिटिक्स ही छोड़ दी थी। एमजी रनाडे याद रखिए, एमजी रनाडे मॉडरेट्स थे और अरविंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट थे, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। Who among the following was an extremist? इनमें से कौन जो है एक्सट्रीमिस्ट थे? ये बिपिन चंद्रपाल, लाल बाल मैंने बोला ना, घोष, या तो यही सी वाले एक्सट्रीमिस्ट थे, बिपिन चंद्रपाल जो है एक्सट्रीमिस्ट थे। After the year 1906, the effect of extremists had increased on the Indian national movement. तो एक्सट्रीमिस्ट का इफेक्ट तब बढ़ गया था। द कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत केम इन 1907 में कांग्रेस का स्प्लिट हो गया अराउंड द टाइम व्हेन रिवोल्यूशनरी टेररिज्म हैड गेन्ड मोमेंटम। The extremists were aggressive nationalist members of the Indian National Congress. The important extremist leaders were Lal Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandrapal, and Aurobindo Ghosh. Tilak announced that Swaraj is my birthright and I shall have it. ठीक है? Who among the following was not known as the moderate in the national movement? कौन जो मॉडरेट नहीं थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे यार, यही होगा। Who is popularly known as शेर पंजाब? तो लाला लाजपत राय को बोलते थे शेर पंजाब, ठीक है, याद रखिएगा। लाला लाजपत राय was known as शेर पंजाब. He was extremist representative of Punjab in Congress. He is known as Punjab Kesari. Lal Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandrapal known as लाल बाल पाल, इन्हीं को बोलते थे। लाल लाजपत का लाल हो गया, बाल गंगाधर तिलक बाल हो गया एंड बिपिन चंद्रपाल पाल हो गया, ठीक है। Who among the following was not associated with the moderates in Indian National Congress? कौन जो है moderates से रिलेट नहीं है? थे लाल लाजपत राय। Who among the following was considered by लाल लाजपत राय as a political guru? कौन पॉलिटिकल गुरु के नाम से जाने जाते हैं? मज्जिनी को वो पॉलिटिकल गुरु मानते हैं। ये देखिए PYQ है, इसको याद रखिएगा। लाला लाजपत राय अपने पॉलिटिकल गुरु किसको मानते हैं? मज्जिनी को। ये फॉरेनर था ना जिसने किताब लिखी थी, जिसको ये पढ़ के खुश हो गए थे। लाला लाजपत राय एक्सेप्टेड इटालियन रिवोल्यूशनरी, या इटालियन थे, रिवोल्यूशनरी थे मज्जिनी, as his political guru after reading his biography, and later he translated splendid creation of Majjini, The Duty of Man in Urdu also. The Duty of Man जो था ना मज्जिनी का, ये इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, इन्होंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया था, ठीक है। He wrote biography of Majjini. देखिए आइए से पूछ लिया था कैसे, देखिए बायोग्राफी of मज्जिनी था ना, He wrote biography of मज्जिनी, तो उसका बायोग्राफी पढ़े थे। गैरीबाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा स्टेड इन अमेरिका में रहे थे फॉर सम टाइम एंड वाज आल्सो इलेक्टेड फॉर सेंट्रल असेंबली। ही वाज, थे कौन थे? लाला लाजपत राय थे, ये ठीक है, ये कौन थे? लाला लाजपत राय थे। इंडियन फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी lived in America for some time during his exile in the year 1997 में थे।
and returned during the First World War. Along with being a politician, he was also a prolific writer. He also wrote a brief biography of the Lord Krishna, Shivaji, Swami Dayanand Saraswati, Majjani, and Garibaldi. Unhappy India, उन्होंने क्या लिखा था? ये सब बुक लिखी थी। अनहैप्पी इंडिया को इन्होंने लिखा था, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन आर ही अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स। Who called the Congress conference as the annual national festival of the educated Indians? जो कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस का उसको क्या बोलते हैं? एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस। तो इसको ये बोलते थे लाला लाजपत राय, देखिए क्या बोलते थे, एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस। जो एजुकेटेड इंडियंस है ना, इंडियंस थे, उनका एक फेस्टिवल है ये कॉन्फ्रेंस होता है। जो क्रिटिसाइज बहुत करते थे जो मॉडरेट्स थे उस समय। लाला लाजपत राय called Congress conference as the annual national festival of the educated Indians। इसके बोलते थे ऐसा, क्रिटिसाइज बहुत करते थे भाई कि ऐसा तुम कर लेते हो भाई, क्यों? तो ऐसा होता था मॉडरेट्स में, जैसे आज होता है ना। आज क्या होता है देखते होंगे, जो क्या बोलते हैं अपोजिशन होती है, वो जो है रूलिंग गवर्नमेंट की जैसे क्रिटिसाइज करती है ना, तो पॉजिटिव होता है भाई। वो मतलब अपने रीजन देते हैं क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक चीज का रीजन उनके पास होता है, ठीक। तो ऐसे नहीं सब कोई क्रिटिसाइज करता है भाई, तो रीजन था उनके पास, ठीक है। अब देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मॉडरेट? इनमें से कौन जो है मॉडरेट नहीं है? देखिए मॉडरेट कौन नहीं है? बाल गंगाधर तिलक जो है एक्सट्रीमिस्ट थे। ये कहाँ से मॉडरेट हो जाएंगे यार, एक्सट्रीमिस्ट थे ना। Neo-nationalist group of Lal Balpal was disillusioned by the initial moderate policy of the Congress. Bal Gangadhar Tilak was a pioneer of new ideology. He was an extremist, not a moderate. Who among the following leader was a supporter of the स्वदेशी? इनमें से कौन सा लीडर था जो कि स्वदेशी का सपोर्टर था? कौन सा लीडर था जो कि सपोर्टर था स्वदेशी का? बताइए। स्वदेशी का सपोर्टर कौन था? ये थे अरबिंदो घोष, जो कि पार्ट थे एक्सट्रीमिस्ट के। अरबिंदो घोष साहब एक्सट्रीमिस्ट के पार्ट थे, यही इसके सपोर्टर थे स्वदेशी के। स्वदेशी मतलब स्वदेश की जो वस्तुएं हैं, इंडिया मेड जो प्रोडक्ट हैं उनको यूज करना था, यही उनका एम था, ठीक है। अरबिंदो घोष वाज द मेन लीडर ऑफ द Swadeshi movement, started in 1985, which began against the Bengal partition. Other main leaders of this movement were लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से। देखिए सब लोकेशन थोड़ा याद रखिएगा। लाल लाजपत राय जो पंजाब के थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, एंड बिपिन चंद्रपाल बंगाल के थे। Who among the following known as the father of Indian unrest? तो इनको जो ब्रिटिश थे ना बोलते थे लोकमान्य तिलक को, ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है। बाल गंगाधर तिलक बिलीव्ड इन सर्विस एंड सैक्रिफाइसेस। He dared to challenge the British Empire. It was the result of his efforts that the Indian National Congress became the party to criticize the British policy instead of praising British rule. तो सीधे क्रिटिसाइज करते थे ब्रिटिश पॉलिसीज को। वैलेंटाइन चिरोल जो है, ये देखिए जो बंदा था ना, ये फेमस थी, याद रखिएगा। जो वैलेंटाइन चिरोल थे, उन्होंने बीजी तिलक को क्या बोला कि फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोल दिए इनको, बाल गंगाधर तिलक को।
Tilak went to England to file a defamation suit against Chirol, but was defeated. But वह defeat किया क्योंकि ये इनको डिफेमेशन बोल दिए कि वैलेंटाइन चिरोल ने उनका डिफेमेशन किया है, उनका मजाक उड़ाया है, तो केस करना चला गया लंदन में। बताइए उस समय वो लंदन चले गए, इंग्लैंड में चले गए, लेकिन वो हार गए, कोई रीजन बढ़िया से नहीं दे पाए। ठीक है, तो इनको कोई बढ़िया से रीजन दे ही नहीं पाए, याद रखिएगा। Who called Bal Gangadhar Tilak the father of Indian unrest? Valentine Chirol थे ये। Who said Tilak is the father of Indian unrest? थे Valentine Chirol थे, V Chirol। Who among the following has been called the father of Indian unrest? थे हैं BG Tilak, father of Indian unrest। ठीक है। After the sentence of the BG Tilak, who among the following had pleaded for mercy and said, "My interest in Tilak is that of a संस्कृत scholar"। उसने बोला कि मेरा इंटरेस्ट है कि जो है तिलक जी वो संस्कृत स्कॉलर हैं। ये रविन्द्रनाथ मैक्स मुलर ने जो है प्लीड किया था फॉर मर्सी, ये इन्होंने ये बोला था कि संस्कृत स्कॉलर हैं वो मैक्स मुलर। Bal Gangadhar Tilak, who was a strong supporter of Swadeshi and belonged to an extremist camp to opposing British rule, he founded the English Weekly। इन्होंने क्या क्या लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने? द महाराष्ट्र लिखा था, मराठी वीकली केसरी लिखा था, मराठी में था। बोथ द पेपर्स वर एक्सट्रीम नेशनलिस्ट which brought Tilak within the reach of criminal law। Tilak's utterance and writing were regarded as radical content and so he was sentenced। जो इन्होंने लिखा था ना ये केसरी और महाराष्ट्र, इसको लोग ब्रिटिशर्स ने इसका समझा कि यह गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो उन्होंने इसको अरेस्ट कर लिया। मैक्स मुलर प्लीडेड फॉर गवर्नमेंट मर्सी फॉर तिलक, सेइंग क्या बोला मैक्स मुलर ने कि एज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत आई एम इंटरेस्टेड इन तिलक। ये वह संस्कृत के स्कॉलर है, इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ मर्सी के लिए अप्लाई करता हूँ, छोड़ दीजिए। बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक व्हेन कब उनको लोकमान्य तिलक बोला गया? तो ये इनमें से कोई रीजन नहीं दिख रहा। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड बाल गंगाधर तिलक एक्टिविटी इन द रैंड प्लेग कमिश्नर पुणे। रैंड कमीशन था ना, वो प्लेग कमीशन था, प्लेग कमिश्नर था, अब पुणे का प्लेग कमिश्नर था। एंड आइस्ट मर्डर, जो आइस्ट था उसको मर्डर केस चल रहा था उन पर। तिलक वाज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू 18 मंथ जेल हुआ था, उनको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हुआ था। ही ऑलरेडी बिकेम ए नेशनल हीरो व्हेन ही केम आउट ऑफ जेल। वो नेशनल हीरो बन गए थे वो जब जेल से बाहर आए। हेंस मेनी इंसिडेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर तिलक्स बिकमिंग लोकमान्य तिलक। कई रीजन थे उनके लोकमान्य तिलक बनने के लिए। Which extremist, इसमें देखिए लोकमान्य बोले थे, which extremist leader of the freedom movement was given 6 year jail punishment in 1908। इनको जो है 6 years का जेल दिया गया था भाई, बताइए। तो बाल गंगाधर तिलक थे, 1908 में उनको जेल दिया गया था। In 1908 Tilak was sentenced to 6 year imprisonment। He was deported to Burma and kept in Mandalay jail। In 1908 बाल गंगाधर तिलक was imprisoned for 6 years। 6 year के लिए जेल हुआ था। Which one of the following defines extremist ideology during the early phase of the Indian freedom movement? इनमें से कौन जो है extremist ideology को डिफाइन करता है during the Indian freedom movement? बताइए। Stimulating the production of indigenous articles by giving them preference over imported commodity, obtaining self-government by aggressive means in place of the petition and constitutional way। देखिए aggressive है ना, तो ये extremist ideology को प्रमोट कर रहा है। Providing national education according to the requirement of the country, organizing coups against the British Empire through military। ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? बी लग रहा 34 का, बी देख लिए। Moderates believed in the constitutional method of British laws, adopting proposals and delegation to London for negotiation and discussion. On the other hand, extremists believed in the aggressive protest, self-sacrifices, and determination at the beginning of the Indian national independence movement। Independence mean for the extremists as complete independence। जो extremists थे बोलते थे independence mean क्या होता है? Complete independence from foreign control। तो अब पूरा
मतलब सेल्फ रूल चाहते थे पूरी तरीके से। वाली मॉडरेट मीन इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्नेंस अंडर कॉलोनियल रूल। देखिए इनका इंडिपेंडेंस दोनों का डिफरेंट था। जो मॉडरेट्स थे ना वो इंडिपेंडेंस समझते थे कि वो ब्रिटिश के अंदर, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इंडिपेंडेंस समझते थे पूर्ण स्वराज। जो पूर्ण समाज स्वराज जो है मांगा गया 1929 में, लेकिन अभी भी ये पूरा तरह से आज़ादी चाहते थे ये, ठीक है ना, सेल्फ रूल। द इंडियन मुस्लिम इन जनरल वर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ द, क्यों जो है मुस्लिम जो है नहीं अट्रैक्ट हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, मतलब एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए। क्यों? एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ हार्पिंग ऑन हिंदू पार्ट। ये एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे कि जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी है ना वो हिंदू को ज़्यादा फेवर करती है, इसलिए मुस्लिम उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए, ठीक है। Indian Muslims in general were not attracted to the extremist movement because of the extremist policy of the harping on the Hindu part. Aurobindo Ghosh proclaimed that independence is the purpose of our lives and only Hindu religion will fulfill this objective. Nationality is a religion and it is a gift of God. ठीक है, नेशनलिटी मतलब अरविंदो घोष बोले थे कि हिंदू ही सिर्फ फुलफिल करेंगे इस ऑब्जेक्टिव को कि इंडिया का जो है सेल्फ रूल मिल जाए, और जो है नेशनलिटी जो है रिलीजन है। इसे मैच कराना है असेसन और रीजन को। बाल गंगाधर तिलक वाज ए कम्युनिस्ट। तो बाल गंगाधर तिलक जो है कम्युनिस्ट थे, ठीक है। ही यूज्ड द रिलीजन एज ए पॉलिटिकल वीपन। तो इन्होंने रिलीजन को पॉलिटिकल वीपन की तरह यूज किया था। सही है कि गलत है? तो देखिए ये तो गलत है, दूसरा सही बात है। उन्होंने कई शिवाजी फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल उन्होंने शुरुआत कर दी थी, तो उन्होंने रिलीजन को यूज किया था इन ए पॉजिटिव मैनर सो दैट सभी यूनाइट होगा, जो इंडियन है यूनाइट हो जाए, ठीक है, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करें। तो ये वाला सही। बाल गंगाधर तिलक वाज कम्युनिस्ट, नई बात है यार, ये कम्युनिस्ट नहीं थे, गलत है। वो नेशनलिस्ट थे, वाज एक्चुअली स्टॉन्च नेशनलिस्ट हु सपोर्टेड फॉर स्वराज एज द बर्थ राइट ऑफ एवरी इंडियन एंड इन दिस वे ही ट्राइड टू मेक क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पीपल ऑफ इंडिया एंड इन हिज व्यूज वाज कंसीडर्ड एज ए पायनियर ऑफ एम.के. गांधी, ठीक है। जो उनका व्यूज था ना वो गांधी जी भी फॉलो कर लेते थे। ही स्टार्टेड गणपति पूर्व, देखिए कौन शुरुआत किया था पूछता एग्जाम में, गणपति पूर्व एंड शिवाजी महोत्सव कौन शुरू किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था in Maharashtra to infuse nationalistic feelings among the masses. On the other hand, he used religion as a political weapon, but not for communal purpose. तो उन्होंने रिलीजन को पॉलिटिकल वीपन किया, बट कम्युनल पर्पज के लिए नहीं किया था, वो नेशनल मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए। गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र वाज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी महोत्सव, तो ये थे बीजे तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। Who among the following transformed the traditional Ganpati festival of Maharashtra into a national festival and gave it a political character? तो कौन थे? तो ये शिवाजी थी। महादेव गोविंद रनाडे थे, नहीं बाल गंगाधर तिलक बोले थे ऐसा, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि जो गणपति फेस्टिवल है उसको नेशनलिस्ट फेस्टिवल में उसको कन्वर्ट कर दिए थे। ये थे कौन थे? बाल गंगाधर तिलक साहब थे, ठीक है। तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, ये सब, ठीक है। और देखिए हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड गणेशोत्सव, इनमें से कौन जो है गणेशोत्सव को स्टार्ट करते हैं? गणेश उत्सव, ये है बाल गंगाधर तिलक जो है इसको स्टार्ट करते हैं गणेश उत्सव। Along with Mahatma Gandhi, who among the following Muslim did lift the bier of बाल गंगाधर तिलक, जो कौन इसमें मुस्लिम था जो इनके जो तिलक का डेथ हुआ था तो इनको उठाया था चार कंधे पे, तो ये थे इनमें से शौकत अली भी उसमें से थे, इन्होंने उठाया था। शौकत अली and Dr. Saifuddin Kichu along with Mahatma Gandhi lifted the bier of Bal Gangadhar Tilak after his death on 1st August 1920 and Maulana Hasrat Mohani read the elegy after his death. मौलाना हसरत मोहानी जो है उनकी लिखी को रीड किए थे उनके डेथ के बाद, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा।
अब देखिए हम लोग इसके बाद रिवोल्यूशनरी मूवमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, विल स्टार्ट लेटर द रिवोल्यूशनरी पार्ट्स।